عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. میں آپ کو سولجر سپیکس کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں. میرے بارے میں فوجی حضرات یہ کہتے ہیں پاکستان میں کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے، لیکن گھر کے بھیدی کو لنکا ڈھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر پاکستان کی فوج جو کام کر رہی تھی وہ کرتی رہتی، پاکستان کے لیے کام کرتی رہتی، نہ کہ اپنی کمانڈ کے لیے کام شروع کر دیتی، نہ کہ اپنے آرمی چیف کے لیے کام شروع کر دیتی، نہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ کہنا پڑتا کہ جدھر آرمی چیف دیکھتا ہے ادھر پوری فوج دیکھتی ہے. یہ تو ہمارے حلف کی خلاف ورزی ہے. حلف تو ہم نے لیا پاکستان کی قوم سے وفاداری کا، اور وفاداری اگر آرمی چیف کی کرنی ہے یا کمانڈر کی کرنی ہے، لائلٹیز ٹو دا کمانڈ ہے، تو یہ تو غلط بات ہے پھر. اور میں پاکستان آرمی کے انفارمیشن آپریشن نیٹ ورک کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، اور مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا یہ بات اس وقت، جو میں اسی وجہ سے اس کو ایکسپوز کر تو رہا ہوں. لیکن کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ پاکستان کی فوج کی جو پروپیگنڈا مشینری ہے، جو کہ اس وقت ایک نیا کردار جو ہے وہ اختیار کر چکی ہے، وہ کسی طور بھی پاکستان کے جو ہے نیشنل انٹرسٹ میں کام نہیں کر رہی، پاکستان کے قومی مفاد میں کام نہیں کر رہی، بلکہ جرنیلوں کے انڈیویجول انٹرسٹ میں، انفرادی مفادات کے اندر کام کر رہی ہے. کیسے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا سمجھیے گا. مختصر سی ویڈیو ہے لیکن کچا چٹھا سارے کا سارا کھولنا بہت ضروری ہے. عزیزان من، پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر اکثر جو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ عوامی ریئیکشن نہیں ہوتا. باقاعدہ طور کے اوپر سوشل میڈیا سیل چلائے جاتے ہیں. اب تو ہمیں پتا ہے، ہم آپ کو بتا چکے ہیں، جو پاکستان کی پروپیگنڈا مشینری ہے، جس کا میں نے آسان لفظوں میں اسکرانڈو برگیڈ نام رکھا ہے، ان کی تفصیلات کیا ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ جو آپ کو سوشل میڈیا پہ شور نظر آتا ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا ہی منظم قسم کا سٹرکچرڈ سسٹم ہے، ایک انفارمیشن آپریشنز نیٹ ورک ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید ایوالو ہو رہا ہے. اور آج ہم اس سسٹم کو بریک ڈاؤن جو ہے وہ کرتے ہیں. یہاں پہ ہسٹری سے لے کر کرنٹ کمانڈ انفراسٹرکچر اور کرنٹ جو کمانڈ سٹرکچر ہے اس وقت تک، میں مختصر آپ کو صرف چند منٹوں کے اندر دستی سب کچھ سمجھا دیتا ہوں. سب سے پہلے جو بنیادی سٹرکچر پاکستان کی فوج کا یا پورے پاکستان کی ریاست کا جو پروپیگنڈا انفراسٹرکچر ہے، اس کو سمجھنا، بنیادی سٹرکچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس میں سب سے پہلے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز آتا ہے، آئی ایس پی آر، جو 1948 میں اسٹیبلش ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے وہ معذرت انٹر سروسز انٹیلیجنس، آئی ایس آئی، اس کا ایم ونگ ہے، میڈیا ونگ ہے، وہ پروپیگنڈا ونگ ہے. وہ 1948 میں آئی ایس آئی کا میڈیا ونگ بنا، اور اگلے ہی سال 1949 میں انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کو کھڑا کر دیا گیا. اور دونوں کا مینڈیٹ اصل میں تو انٹر سروسز تھا، لیکن اس وقت جوائنٹ سروسز ہیڈ کوارٹر موجود نہیں تھا. اس لیے تاریخی طور کے اوپر ہسٹوریکلی ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر، مطلب اس وقت ڈائریکٹر آئی ایس پی آر تھے، دونوں ڈائریکٹلی چیف آف آرمی سٹاف کو رپورٹ کرتے تھے. اور یہ رپورٹنگ پیٹرن کئی دہائیوں تک چلتا رہا. اور عزیزان من، یہاں آپ نے سمجھنا ہے کہ تھا تو یہ انٹر سروسز معاملہ، لیکن کیونکہ چیف آف آرمی سٹاف پاکستان میں ایوب خان سے کمانڈر ان چیف شروع ہو کے، ضیاء الحق سے شروع ہو کے، اس سے پہلے یحییٰ خان درمیان میں تھا، مشرف سے لے کے اب عاصم منیر تک، فوج میں جو ہے اس کی حکومت ہے، فوجی آرمی چیف کی حکومت ہوتی ہے، چاہے وہ جو مرضی اپنے آپ کو رینک دیتا رہے، اس کی حکومت ہوتی ہے. اس لیے یہ انٹر سروسز مینڈیٹ جو ہے، یہ پوری قوم کو گمراہ کرنے کے اوپر، یا پوری قوم کو جو ہے وہ انفارمیشن آپریشن، پروپیگنڈا، نیریٹو مینجمنٹ، پرسپشن مینجمنٹ، جو ہے آپ جو بھی بیانیہ بنانا اور بیانیے کو توڑنا مروڑنا، لوگوں کے ذہنوں سے کھیلنا، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، اس کے اوپر لگ گیا. اس میں فوجی ٹاسک بھی تھے، ہندوستان کو ٹارگٹ کرنا ہے، افغانستان کے خلاف بات کرنی ہے یا ان کے حمایت میں بات کرنی ہے، امریکہ کی حمایت میں بات کرنی ہے، ان کے خلاف بات کرنی ہے، اسرائیل سے تعلقات بنانے کے حق میں بات کرنی ہے، ان کے خلاف بات کرنی ہے. جو بھی آرمی چیف کے انفرادی مفادات اس وقت کے ہیں، اس کے حساب سے، اس وقت کے حساب سے جو ہے یہ کام اس طرح چلایا جاتا ہے، اور یہ پوری کی پوری مشینری جو ہے وہ چلائی جاتی ہے. اب 1973 میں یہ سمجھنے والی بات ہے
कि ज्वाइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर स्टैब्लिश हो गया। अब पेपर के ऊपर, ग्राउंड पे ना सही, लेकिन पेपर के ऊपर इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अंदर चली गई। लेकिन प्रैक्टिकली अगर उसको देखा जाए तो हकीकत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी और है भी। खुफिया तौर के ऊपर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग चेन के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ही होती रही और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ज्यादातर किरदार सिर्फ सेरेमोनियल ही रहा हमेशा से। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना होगा आपको, जो स्ट्रक्चर और अथॉरिटी है ये हमेशा एक जैसी नहीं होती। कागजों पे जो आपको नजर आ रहा था और असल में ताकत होती है वो एक जैसी नहीं होती। कागजों के अंदर ट्रंप भी बोलता है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ है और फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। कागजों के अंदर तो जो है वो ताकत शहबाज शरीफ के ऊपर है। हकीकत में शहबाज शरीफ जो है वो सिर्फ अर्दली है, चपरासी है आसिम मुनीर का, क्योंकि ताकत आसिम मुनीर के पास है। ये आसान तरीन में आपको करंट ये मामला जो है समझने में आसानी होगी। अब आते हैं ये जो फौज की प्रोपेगेंडा मशीनरी है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, इसका अब जो रीसेंट स्ट्रक्चर के अंदर शिफ्ट आई है हाल ही के अंदर 27वीं तरमीम के बाद, उसमें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो एक जेएस हेडक्वार्टर का सिस्टम है उसको सिरे से खत्म कर दिया गया है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएफ का ऑफिस कायम कर दिया गया है और उस पर मुनीरा मिस्त्री खुद आके बैठ गया है। और इसके बाद ऑफिशियली डीजीआईएसआई और डीजीआईएसपीआर दोनों रिपोर्टिंग करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को। ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंज है जिसकी वजह से इस वक्त प्रोपेगेंडा के अंदर आपको बहुत ही शिद्दत नजर आती है। मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो खर्च किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने कल रिपोर्टिंग की है तफसील के अंदर कि आसिम मुनीर ने ट्रंप को कैसे पटाया। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए उसको, सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर तमाम तर तफसीलात उसकी मौजूद हैं। अब देखिए, मखसूस इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के इम्पैक्ट के ऊपर अगर आप बात करें तो ये जो तब्दीली हुई है कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को खत्म करके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को लगा दिया गया है, इस तब्दीली का सबसे बड़ा असर कहां पे नजर आता है? इंफॉर्मेशन डोमेन के ऊपर नजर आता है। अब पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में इंटेलिजेंस इनपुट जो आ रही है आईएसआई से, मिलिट्री इंटेलिजेंस से, जो मीडिया नैरेटिव बनाया जा रहा है, मीडिया के ऊपर जो बयानिया जो भी चलाया जा रहा है, चाहे वो ड्रामों के जरिए चलाया जाए, चाहे वो गानों के जरिए चलाया जाए, चाहे वो सोशल मीडिया खास तौर के ऊपर अहम तरीन वहां पे किरदार अदा कर रहा है उसके जरिए, या ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर को दे दिया जाए डीजीआईएसपीआर की तरफ से। मुख्तलिफ इस वक्त जो अर्दली सरकार है उसकी चपरासी मजीद भी तो है ना, जो मिनिस्टरों का किरदार अदा कर रहे हैं, उनके जरिए स्टेटमेंट रिलीज करवा दी जाए, या बैनुल-अक़वामी मीडिया के अंदर जो है स्टोरीज प्लांट करवाई जाए पैसे लगवा के $50,000 लाख डॉलर के जरिए। आपके पास सबूत तो मौजूद है ऑलरेडी कि इंटरनेशनल लॉबिंग हो रही है। उसका तरीका सबसे बड़ा यही होता है कि इंटरनेशनल जो पब्लिकेशंस हैं उसमें स्टोरियां प्लांट की जाती हैं। तो अब पहली दफा जो है ये एक पूरे का पूरा स्ट्रेटेजिक कमांड, मीडिया नैरेटिव, इंटेलिजेंस इनपुट एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क के जेर कमान आ गया है। और इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा जाहिर बात है बड़ी बेहतर कोऑर्डिनेशन हो रही है। ट्रंप फेवरेट फील्ड मार्शल बोल रहा है मुनीर मिस्त्री को, बड़ा फास्टर रिस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ पे टक टक टक, आप यहाँ पे मैं वीलॉग करूंगा, इसके कमेंट्स में आ जाएंगे। और वीलॉग के ऊपर तो यूट्यूब के ऊपर शायद इतना ज्यादा उसको फायरवॉल लगाते हैं, लेकिन एक्स के ऊपर मैं @SoldierSpeaks के ऊपर जाके चीज लिखूंगा, आपको गालियों की भरमार नजर आएगी। कुछ लोग इंटेलेक्चुअल बन के आ जाएंगे, कुछ जनाब वो टिक साइन अपने ब्लू टिक वगैरह लगा के आ जाएंगे। फौरन इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलेगा, जिस रिस्पॉन्स के तहत इस वक्त पूरे का पूरा 24/7 साइबर मीडिया सेल काम कर रहे हैं। ये असल में जो है इंटीग्रेटेड कमांड का ही नतीजा है कि कोऑर्डिनेशन बड़ी बेहतर है, बड़ी तेजी से रिस्पॉन्स है और यूनिफाइड मैसेजिंग है। सब के सब आसिम मुनीर को बाप मान के, बाप बनाने और बाप प्रोजेक्ट करने के लिए ऊपर लगे हुए हैं, फेवरेट फील्ड मार्शल। और मजबूरी है कि कागजों के ऊपर शहबाज शरीफ को दिखाना है, तो उसके लिए डिजिटल मीडिया सेल जो है वो उन लोगों ने भी बना ली है अपना। वो अताला बांदर साहब, ताड़र साहब जो है उन्होंने बना ली है, वो अपना काम कर रहे हैं और उनका काम 24 घंटे लोगों को गालियां निकालना या नैरेटिव चलाना है। ये एक पूरे का पूरा यूनिफाइड मैसेजिंग चल रही है। तो जो ट्रेंड्स और नैरेटिव आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर खास तौर के ऊपर, वो इसी सिस्टम का
आउटपुट है इस वक्त जो आपको नजर आता है। ट्रेंडिंग अगर आप देखेंगे, हैशटैग जो चल रहे हैं वो इसी सिस्टम के तहत चल रहे होते हैं। अवाम तो गालियां देने के अलावा जो है अब हैशटैग भी भूल के बैठी हुई है। सोशल मीडिया की रियलिटी पे अगर बात करते हैं तो सवाल ये है कि क्या ये अवामी ट्रेंड्स हैं या फिर स्ट्रक्चर्ड एम्प्लीफिकेशन की जा रही है। हकीकत आमतौर पर इन दोनों के दरमियान आपको मिलेगी। ऑर्गेनिक सेंटिमेंट भी होता है लेकिन उसे डायरेक्शन भी दी जाती है, हाईजैक किया जाता है, और ये डायरेक्शन सेंट्रलाइज्ड होती जा रही है। एक मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल में साइबर टावर बनाया हुआ है जहां पे पहले कर्नल शाहजेब अब्बासी बैठा हुआ था, अब कर्नल जवाद लुबड़ बैठा हुआ है। मैं मस्ता इसलिए हूं कि नाम जवाद को लुबड़ दिया था, मैंने दिया 98 लॉन्ग कोर्स उलन दिया, मेरा 99 लॉन्ग कोर्स है। तो वो मुख्तलिफ नाम लोग देते हैं, पीएमए नेम्स रखते हैं, मेरा नहीं रखा जा सका इनसे। राजा इज द नेम दे हैव गॉट एंड राजा इज द ओनली नेम व्हिच दे कुड स्टिक, कोई और नाम नहीं स्टिक कर सके। आसिम मुनीर का नाम धोखेबाज द डिसीवर है, पूरा पाकिस्तान जानता है। तो इस तरह 24/7 कमांड, आईएसपीआर का इंफॉर्मेशन ऑपरेशन डायरेक्टरेट भी चला रहा है, आईएसआई का एमविंग भी चला रहा है, और पहले इनकी अपनी अपनी मस्जिदें अलहदा होती थी। अब क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया है तो डंडा एक सबसे बड़े वाला है, तो सब उसके गिर्द घूम रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं उसको बाप बनाने की, और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सबसे अजीम तरीन जो है वो बंदा है, और कोई है ही नहीं पाकिस्तान में, जम्या ही कोई नहीं। ये जिस दिन शिफ्ट होगा इसकी जगह कोई और आएगा, उस दिन वो बन जाएगा, इसको भूल जाएंगे, जो बाजवे का हाल है वही इसका होगा। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि हर चीज अब पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा मशीनरी, स्करांडू ब्रिगेड, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन नेटवर्क पूरा सेंट्रलाइज्ड हो गया है, और उसकी फिर स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस है ना ओवरऑल पूरे रीजन के अंदर। इस सिस्टम की स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन क्या है? स्टेट नैरेटिव ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, दुनिया उसको पिक करती है, जो दिखता है वो बिकता है। इंफॉर्मेशन कंट्रोल बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, पीका लॉज, लोग सवाल कर लें आसिम मुनीर से के साले से तो उसको उठा लेते हैं जर्नलिस्ट को, और डिजिटल स्पेस स्ट्रक्चरल बैटलफील्ड बन जाती है। इस वक्त डिजिटल फील्ड यकीनी तौर के ऊपर एक बैटलफील्ड बनी हुई है। लेकिन एक चैलेंज भी है यहाँ पे, वो ये है कि अगर जो हकीकत जमीन के ऊपर है और बयानिया जो बनाया जा रहा है, नैरेटिव बनाया जा रहा है, उसके अंदर फर्क जो है वो नजर आता है, वो बढ़ता चला जाता है, तो फिर रियासत के इदारों की तरफ से जो बात आ रही होती है उस पर ट्रस्ट खत्म हो जाता है, एतमाद खत्म हो जाता है, जो कि इस वक्त हो रहा है। फौज के ऊपर एतमाद खत्म हो गया है पाकिस्तान की आवाम का, वो ये जेन्युइन सेंटिमेंट है, ये कोई अपने पास से मैं बात नहीं कर रहा। तो अजीजान मन, आज पाकिस्तान में सिर्फ ग्राउंड के ऊपर नहीं, इंफॉर्मेशन स्पेस में भी जंग चल रही है, और इस जंग को अगर आप समझना चाहते हैं, और इसको समझना हर शहरी के ऊपर लाजमी है, फर्ज है, टू कट द क्लटर एंड रीच द ट्रुथ। मैं हूं आदिल राजा और आप देख रहे थे सोल्जर स्पीक्स। कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि क्या आप इस क्लटर के अंदर से देख सकते हैं हकीकत को, या आपके ऊपर ये प्रोपेगेंडा असर कर रहा है? क्या आपका एतमाद है पाकिस्तान की फौज पे और पाकिस्तान की मिलिट्री इंफॉर्मेशन ऑपरेशन नेटवर्क के ऊपर, या नहीं है? या पाकिस्तान की हुकूमत के, स्टेट के इंफॉर्मेशन ऑपरेशन नेटवर्क के ऊपर क्या आपका एतमाद है? ये कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। @Soldier Speaks Reloaded। खुदा हाफिज।